Okay. As we know that TB is short for tuberculosis. TB is caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis. The bacteria usually attacks the lung, but TB bacteria can attack any other part of the body, such as kidney, spine, and brain. And we all know that if untreated, TB can be fatal. टीबी जो है इसको पाकिस्तान की जो है नेशनल डिजीज भी कहते हैं. किस वजह से कहते हैं? कोई गेस? नहीं. अच्छा जी, टीबी को पाकिस्तान की नेशनल डिजीज इसलिए कहते हैं that our founder Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah suffered from tuberculosis, and it is said that he died due to tuberculosis. Though his X-ray जो अगर आप जो सर्च करना चाहें तो you can see that उसके अंदर cavities हैं which are consistent with tuberculosis, but we know that Qaid Azam was a smoker, so these are his lungs are emphysematous. So COPD plus tuberculosis. So TB is a very ancient disease, और जो oldest evidence of tuberculosis है that was seen in Egyptian mummies. Egyptian mummies जो है they date back to 15,000 to 20,000 years back. तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था उस वक्त से TB is there. डिफरेंट एरास के अंदर डिफरेंट जो है अंडरस्टैंडिंग्स थी टीबी के बारे में. कहीं पे इसको कंजम्पशन कहा जाता था बिकॉज पीपल यूज टू गेट सिक एंड इट वाज थॉट दैट इट्स अ कर्स. एक घर के अंदर कुछ लोग एकदम से बीमार हो गए एंड फिर उसके बाद वीक होते चले गए, दे डाइड. फिर घर के दूसरे लोगों के अंदर भी इस तरह से हुआ. इट वाज थॉट कि इट्स अ कर्स, ये कोई साया है, कोई जादू है which is affecting some part of the people, some communities. फिर कहीं पे इसको जो टीबी लिम्फेडिनोपैथी थी उसको इसको फूला कहते थे. टीबी की से जो बोन की डिजीजेस होती थी उसको पॉट्स डिजीज, क्योंकि जो है प्लेग जिस तरह से उस जमाने में आपको पता है कि पेंडेमिक था प्लेग का, तो इसको वाइट प्लेग कहते थे ड्यू टू एनीमिया. अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है रॉयल टच. इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर उस ज़माने में जो है सिर्फ इंग्लैंड में तो अब भी जो है किंगडम है, तो इट इज़ थॉट दैट इट वाज थॉट कि इट्स अ डिजीज. और आफ्टर गॉड जो सबसे मोस्ट पावरफुल आदमी होता था वो किंग होता था. इट वाज थॉट कि इफ अ किंग कम एंड टचेज अ पेशेंट हु हैज गॉट इस कंजम्पशन, द पेशेंट विल गेट क्योर्ड. तो टचिंग सेरेमनी होती थी. टचिंग सेरेमनी वाज दैट कि किंग आता था और डिजीज लोगों को आके टच करता था, और इट वाज थॉट कि ड्यू टू द टच पीपल विल गेट क्योर्ड, एंड सम ऑफ दीज पीपल यूज्ड टू गेट क्योर्ड. किस तरह से क्योर होते थे? कोई जवाब मिलेगा? नेचुरली ड्यू टू द इम्यूनिटी ऑफ द पीपल. कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता था, दे यूज्ड टू गेट बेटर, बट द क्रेडिट यूज्ड टू गो टू द किंग. फिर उसके बाद इट वाज कॉल्ड अ रोमांटिक डिजीज. रोमांटिक डिजीज बिकॉज इट यूजुअली अकर्स, बल्कि अब भी जो इट अकर्स इन द यंग पीपल, एंड इट वाज एसोसिएटेड विद अ ब्रोकन हार्ट, के दिल टूट गया बेचारे का, देखो उसको खांसी हो गई, उसके बाद ही प्रेशर हो गया, एंड फिर जस्ट स्लोली द पर्सन यूज्ड टू डाई. So it was thought that it was due to dil tootna. So this is a picture, and it is a very depressive picture that on your right side a young lady is there, a nurse is there, and maybe the father is looking for the doctor or is looking in the gray sky, waiting for the person to die. So in 1882, 24th March, a German scientist, Sir Robert Koch, he discovered that TB is not a curse, it's a disease. And he also isolated the bacillus which causes the disease, known as acid fast bacilli. And due to which he got Nobel Prize. And still we commemorate World TB Day on 24th March every year to give a tribute to Sir Robert Koch.
But even after discovery that TB is due to Mycobacterium tuberculosis, there was no disease till the last century. And the people who used to have tuberculosis were isolated from the community. They were placed in sanatorias to have good sunlight, to have fresh air, and they were giving cod liver oil, and some small surgical procedures were done on the lung to cure them. And do we have any example of sanatorium? Does anyone know about name of any sanatorium? ये आज लोग इतने खुश, इतने ज्यादा चुप क्यों हैं? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. I think they are admin. Okay, yes. ओझा हॉस्पिटल. It was a sanatorium. और ये ज़मीन जो है कराची से बाहर थी, और जो है दीपचंद ओझा, उसने जो है ही वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, उसने ये ज़मीन जो है टीबी के पेशेंट्स के लिए जो है दी, और इसके अंदर कॉटेजेस थे, और ये जो है 1939 की बात है. फिर उसके बाद एक एक करके जो है टीबी की ड्रग्स इन्वेंट होती गई. नाउ जस्ट इमेजिन infective disease which has got a tendency to kill if untreated, which is there for 20,000 years. So no doubt, TB is the greatest killer in the history of mankind. And even today, TB is killing people. TB is a shadow of poverty. It is thought that TB is a shadow of poverty, but we know that it's an infective disease and it infects people. 1/3 of the world population is infected. That is 1.7 billion people are infected with tuberculosis. Population of world is 10 billion people. उनमें से 1.7 जो 10 मिलियन जो है उनको जो है टीबी है, और उनमें से 10% को डिजीज हो जाती है. There are 10 million new cases each year, 2 million deaths each year, or one untreated patient infects 10 to 15% per year. WHO declared TB as a global emergency in 1993. अब पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. 30 हाई बर्डन जो कंट्रीज हैं दुनिया के, उनके अंदर पाकिस्तान का जो रैंक है वो नंबर 5 है प्रीवेलेंस के हिसाब से. हमारे पास जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, ऐसी ट्यूबरक्लोसिस जो कि आईएनएच और रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट है, उसका जो बर्डन है वो दुनिया के अंदर 4th नंबर के ऊपर है. ये एक जो है WHO से जो है डेटा लिया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस है न्यू केसेस का, वो 265 पर 100,000 है. यानी कि 1 लाख लोगों में से 100,000 लोगों में 265 दे गेट ट्यूबरक्लोसिस ईच ईयर. और जो हमारे पास नोटिफाइड केसेस होते हैं एवरी ईयर, न्यू केसेस, वो 369 100,000 यानी कि 3,69,000 जो थे इन 2019. हम जो है एज पर जो है इंसिडेंस सीधे इसमें ख्याल में हम जो 21 नंबर में है इंसिडेंस के ऊपर, और जो डेथ्स ड्यू टू जो ट्यूबरक्लोसिस हैं वो 26 पर 100,000 है, विच इज डिक्रीजिंग. Now some facts about women. TB creates more orphans than any other infectious disease. TB kills more women than all combined causes of maternal mortality. 1 million women die as a result of TB. We know कि pregnancy जो है उसके अंदर infections की tendency बढ़ जाती है. So और फिर उसके बाद जो एंटीनेटल जो चेकअप्स के लिए जो women होती हैं उनको जो हॉस्पिटल भी आना होता है, तो उसकी वजह से TB जो है कॉन्ट्रैक्शन TB जो है का इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. Risk factors associated with tuberculosis are low socioeconomic status, homelessness, disease conditions that weaken the immune system, transplantation, corticosteroid use, malnutrition, diabetes, renal insufficiency, silicosis, smoking, alcoholism, and HIV infection.
अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं तो हम जो है उनको कर लेते हैं। ठीक है जी। टीबी इज हाउ टीबी स्प्रेड। टीबी जो है ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है व्हेन अ पर्सन हु इज हैविंग ट्यूबरकुलोसिस coughs or sneezes. People nearby may breathe in the bacilli and become infected. हो क्या क्या सकता है when bacillus enters in the body? Immediate clearance of the organism, latent infection, onset of active disease, or active disease may occur years later, which is known as reactivation of disease. So this diagram is showing the same thing. Contact with infectious TB patient, there might be infection, there might not be infection. अगर immunity अच्छी है तो infection नहीं होगा। अच्छा, जब infection हो गया उसके बाद 90% of these people will never develop active TB. They will be infected. Infection means कि Montos positive हो गया, लेकिन only 10% may develop the actual disease. And after getting cured, 5 to 8% people develop disease after 5 to 7 years. और जो है आफ्टर 7 years रिलैप्स का चांस कम हो जाता है। अगेन कमिंग टू दिस स्लाइड, टीबी के अंदर जो चीज जो समझने की है वो है कि इन्फेक्शन और डिजीज के अंदर क्या डिफरेंस है। सो वी विल गो बैक के एट द टाइम ऑफ बर्थ इन एंडेमिक एरियाज लाइक पाकिस्तान वी गिव बीसीजी। व्हाट इज बीसीजी? बीसीजी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैसिलस होता है जिसकी एंटीजेनिसिटी तो होती है लेकिन इन्फेक्टिविटी जो खत्म कर दी जाती है। तो एक एंटीजन जो कि इन्फेक्टिव नहीं है that enters the body, macrophages take pictures of that organism। अब अगर जो है ये आया तो we will react against it। so what happens कि इसे कहते हैं, अच्छा अगर कुछ समझ में ना आए तो यहीं पर ही मुझे रोक देना। तो इसे कहते हैं कॉक्स फिनोमेना। कॉक्स फिनोमेना ये है कि अगर पहली दफ़ा इन्फेक्शन होता है तो जो रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी होता है वो स्लो होता है, वो जनरलाइज होता है और लेस सीवियर होता है। और री इन्फेक्शन के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो स्विफ्ट होता है, फास्ट होता है, लोकलाइज होता है और सीवियर होता है। समझ में आया कि रिपीट करूं? इसी बेसिस के ऊपर रिपीट। ओके ओके, जब हम जो ओके ओके हम रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि जब पहली दफ़ा हमने किसी को जो है फर्ज कीजिए कि बीसीजी लगाया है एक बच्चे को, उसकी बॉडी के अंदर एक एंटीजन हमने डाला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, जिसकी पैथोजेनेसिटी नहीं है, सिर्फ एंटीजेनेसिटी है। मैक्रोफेजेस ने जो है उसको जो है नोट कर लिया कि ये एक एंटीजन आया है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली। पहली दफ़ा जब जो है बॉडी के अंदर बैसिलस एंटर होता है तो रिएक्शन जो है वो स्लो होता है, जनरलाइज होता है और लेस सीवियर होता है। नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो वो किस तरह से होगा कि एक ड्रॉपलेट अंदर गया, सारे के सारे मैक्रोफेजेस वहीं पर ही आके उसके चारों तरफ एक वॉल बना लेंगे, तो इन्फेक्शन नहीं हो सकेगा। इसी फिनोमिना को हम यूज करते हैं व्हेन वी डू मोंटोस टेस्ट। जिसको बीसीजी लगी हुई होती है, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग मी। इज देयर समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड उर्दू? ओके, तो जब हम बीसीजी देते हैं तो सॉरी जब हम मोंटोस टेस्ट करते हैं, जो स्किन के ऊपर जो मोंटोस टेस्ट करते हैं, तो जिन लोगों को बीसीजी लगा हुआ होता है या जिनको प्रीवियसली इन्फेक्शन होता है उनका एक बहुत बड़ा निशान बन जाता है, ड्यूरेशन बहुत बड़ी होती है। लेकिन समवन who has never had infection with tuberculosis, never had BCG, वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ऑलराइट,
I hope everyone understood this. अच्छा जी, लंग के अंदर जाके इस टाइप की ग्रेनुलोमास बनाता है, which you can see. What are symptoms of tuberculosis? Cough, weight loss, anorexia, fever, night sweats, hemoptysis, chest pain. Presumptive case of tuberculosis. A patient who has symptoms suggestive of tuberculosis, that is cough for more than 2 weeks, uh, or if there is cough less than 2 weeks, plus hemoptysis, that is blood stained sputum, or previous TB in patients or in family close contacts, then that is a presumptive case of TB, and this has to be remembered. ये आपके MCQ का question हो सकता है. Cough, fever, hemoptysis for more than 2 weeks. What are the investigations for diagnosis of tuberculosis? There are some bacteriological methods in which you isolate the bacillus. Either you stain it, which is known as smear, or you grow it in culture, which is known as AFB culture. Then there are some rapid molecular assays, which are, for example, Gene Expert. Then there are serological tests like PCR, AGRA, radiological methods like X-ray, CT scan, then tuberculin test, Montos, and if there's extrapulmonary tuberculosis like pleural effusion, lymph node, then tissue biopsy or tissue culture. All right. So these are the investigations which are usually done. We will discuss them one by one. To isolate bacillus, what we need is sputum. लेकिन कभी कभार जब पेशेंट्स को स्प्यूटम नहीं आ रहा होता, तो व्हाट वी डू देयर गैस्ट्रिक लेवाज. होता क्या है कि ओवरनाइट वी swallow our sputum, and in the morning on an empty stomach a gastric lavage can be done, and staining of that gastric lavage is possible for to diagnose tuberculosis. उससे ज़्यादा यील्ड है वो है ब्रोंकियोएल्वियोलर लेवाज. ब्रोंकोस्कोप क्या होता है? ब्रोंकोस्कोप जो है वो एक फाइबर ऑप्टिक डिवाइस होती है which we pass through nose into the lungs and take secretion from there and stain it. All right, everyone with me? Sputum microscopy. Sputum smear microscopy is essential case finding in tuberculosis control. चीप टेस्ट है, रेडिली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज जो है इसके अंदर नहीं चाहिए होती है. एक लाइट माइक्रोस्कोप जो है चाहिए होता है, और जो है टीबी बैसिलस को स्टेन किया जाता है, एसिड फास्ट बैसिलस को, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है. इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो डाइज यूज़ होते हैं. आजकल जो फ्लोरसीन जो है ज़्यादा स्टेनिंग यूज़ होती है, और इस तरह से एसिड फास्ट बैसिलाई नज़र आते हैं जो आपको रेड कलर के इजोनोफिलिक कलर के जो आपको बैसिलस नज़र आ रहे हैं. टीबी कल्चर sensitivity is more than smear. Culture can make diagnosis despite fewer bacilli. Only viable bacillus grows in culture, and इसके साथ साथ जो कल्चर का एडवांटेज है वो ये है कि कल्चर के अंदर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी हो सकती है. स्मेयर के अंदर डेड और लाइफ बैसिलस आप स्टेन कर देते हो. कल्चर के अंदर यू ग्रो देम इन ल्यूनस्टाइन जेंसन मीडियम, एलजे मीडियम, और साथ में आप ड्रग सेंसिटिविटी भी कर सकते हो. ड्रॉबैक ऑफ कल्चर, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. जो कन्वेंशनल कल्चर है उसके अंदर जो है 6 वीक्स लग जाते हैं, जो लिक्विड कल्चर है उसके अंदर 2 वीक्स लग जाते हैं. फिर उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटेड नैट टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. ये न्यू टेस्ट हैं, ये इंट्रोड्यूस हुए थे 2009 के अंदर. इसके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा
पॉपुलर टेस्ट है उसको हम कहते हैं जीन एक्सपर्ट। मशीन बहुत सिंपल है, रिएजेंट स्पूटम के साथ मिक्स करके अंदर डाल देते हैं और जो आंसर होता है वो ये होता है एमटीबी डिटेक्टेड, एमटीबी नॉट डिटेक्टेड। रिफेम्पेसिन रेजिस्टेंस भी ये साथ में आइडेंटिफाई कर लेता है। रिफेम्पेसिन इज अ ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। तो ये विद इन 2 आवर्स रिजल्ट दे देता है। माइक्रोस्कोपी के लिए आपको एक टेक्नीशियन की, ट्रेन टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक की भी ज़रूरत नहीं है। और माइक्रोस्कोपी के मुकाबले में ये जो है इसकी यील्ड भी ज़्यादा है, बहुत लेस बेसिलाई के ऊपर ये जो है टीबी को डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। Chest X-ray. Chest X-ray is usually the first test which is done. X-ray के अंदर जो है ट्यूबरक्लोसिस दूसरी डिजीजेस से डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टीबी इज अ टाइप ऑफ नमूनिया। इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, कंसोलिडेशन भी होती है, कैविटेशन भी होती है, नोड्यूल्स भी होते हैं, प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है, मीडियास्टिनल लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है, और छोटे छोटे जो है मिलियरी सीड्स टाइप की जो है इन्फिल्ट्रेशन, जैसे मिलियरी टीबी कहते हैं, वो भी हो सकती है। सो एक्सरे चेस्ट इज नॉट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इट इज इंडिकेटिव लेकिन नॉट डायग्नोसिस, because it cannot differentiate between tuberculosis and other diseases of lung. So here you can see a cavity in the left lung, middle zone. Okay, and here you can see a thick cavity region in the right upper zone. Here you can see consolidation collapse of right upper lung. A thick wall cavity again in the right upper lobe. A cavity with an air fluid level, और ये CTAOC का, a cavity with air fluid level. And these can be tuberculosis. These images can be of a patient of tuberculosis, और ये दूसरी diseases में भी इस type की images आती हैं. Now tuberculin test. ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के अंदर जो है किया ये जाता है कि टीबी बैसिलस को सेंट्रीफ्यूज करके जो ऊपर का जो ब्रॉथ है वो स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो रिएक्शन के अंदर रेडनेस को मेजर नहीं करते, जो इंड्यूरेशन होती है उसको मेजर करते हैं। और ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमें ये बताता है कि प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। वो प्रीवियस इन्फेक्शन ड्यू टू बीसीजी भी हो सकता है, वो प्रीवियस इन्फेक्शन या करंट इन्फेक्शन ड्यू टू डिजीज भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन बताता है, इट डज नॉट टेल यू दैट डज पेशेंट हैव डिजीज और नॉट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज। इन्फेक्शन बीसीजी कन्वर्शन है, डिजीज सिम्टम्स। So tuberculin test is not useful in diagnosis of tuberculosis because it may be positive in TB patients, it may be positive in patients who have been treated in past, in people who are BCG vaccinated, or even in subclinical infections. And negative result may not be useful, but because overwhelming infection may cause negative results. अगर इम्यूनिटी कम हो जाए मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में जैसे होती है, तो टीएसटी नेगेटिव भी आ सकता है। एवरीवन विद मी? कोई चीज समझ में नहीं आ रही? क्योंकि अब हम जो आगे अब जो जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पे। So what is the gold standard test for tuberculosis? How would you differentiate by Monto's test whether it's an active infection or presence of antigen by BCG vaccine, and what is again the gold standard test? So the gold standard test for tuberculosis is TB culture. TB culture
वो जो है 10 to 12 बैसिलस भी अगर स्प्यूटम के अंदर हो तो उसके अंदर टीबी डिटेक्ट कर सकता है. And the second question is, but it is not a screening test. A screening test is smear, which has got a sensitivity of around 92% in second sample. And बहुत जल्दी जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है वो चेंज होके जो नेट टेस्ट है, जो जीन एक्सपर्ट है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, वो हो जाएगा. द वे आई एम सीइंग थिंग्स. Acha, how would we differentiate by Monto's test whether it's an active infection or presence of antigen? By presence, he means presence of antibodies because of BCG vaccination. We can't. That's why we don't do this test. Monto's test should never be done to diagnose TB in an endemic area where BCG is given. अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना एक और टेस्ट की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरफेरोन गामा रिलीज एसिड, इग्रा. इग्रा भी जो है वो डिजीज को इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, लेकिन इग्रा पास्ट इन्फेक्शन के अंदर या करंट इन्फेक्शन के अंदर पॉजिटिव होता है. बीसीजी से उसका कोई रिलेशन नहीं है. यानी बीसीजी ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे बीसीजी जो है लगाया गया हो वहाँ पे इग्रा सिर्फ उन लोगों के अंदर पॉजिटिव आएगा जिनको टीबी इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है जी. व्हाट इज द ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन यू फॉलो व्हेन यू सस्पेक्ट अ टीबी पेशेंट? जब भी कोई पेशेंट जो है आता है जिसको कॉफ होती है तो पहली चीज जो होती है वो एक्सरे होती है, और अगर वो जो है प्रिजम्पटिव केस ऑफ टीबी है तो स्मेयर. स्मेयर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपको आगे किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है. स्मेयर अगर नेगेटिव आता है और आपको जो है फिर भी जो टीबी का जो है बहुत ज़्यादा सस्पिशन है तो यू कैन गो फॉर ब्रोंकियल वॉशिंग फॉर जीन एक्सपर्ट एंड कल्चर. Can you please briefly explain Monto's and skin tuberculin test? Both are the same thing, and how and when it is done. It's not done. ये सिर्फ मेंशन करने की ज़रूरत ये थी, इस वजह से थी क्योंकि बहुत सारे जो है जनरल प्रैक्टिशनर कम्युनिटी के अंदर ये टेस्ट करते हैं टू डायग्नोज टीबी, विच इज़ रॉन्ग. व्हाट इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस? सारे टेस्टों के जो है अपने अपने फ़ायदे हैं. स्मेयर चीप है, रेडिली अवेलेबल है. जीन एक्सपर्ट अब बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल हो गया है, स्मेयर के मुकाबले में जो है उसकी यील्ड ज़्यादा है, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टेस्ट. कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड है और साथ में ड्रग ससेप्टेबिलिटी भी जो है पता चल जाती है. वाई इग्रा इज़ नॉट पॉजिटिव इन बीसीजी वैक्सीनेशन? क्योंकि जो है हर टेस्ट की जो है एक अपनी जो है रेंज होती है, तो वो जो है डिफ्रेंशिएट कर लेता है बीसीजी वाले जो है लिम्फोसाइट्स हैं उसके अंदर, और जो है आई डोंट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, लेकिन कर लेता है. कैन ओनली एक्सरे हेल्प टू डायग्नोज टीबी? नो. शुड वी मूव? इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम? एक रह गई, ईएसआर. ईएसआर के बारे में किसी ने सुना है? ईसीजी ईएसआर का जो है टीबी से कोई रिलेशनशिप? देयर वाज अ टाइम व्हेन ब्लड सीपी के अंदर ईएसआर रेज होता था तो लोग सस्पेक्ट करते थे कि इट्स टीबी. अभी भी जो है बहुत सारे लोग करते हैं, और ईएसआर को टीबी की ट्रीटमेंट के साथ भी एसोसिएट करके देखते हैं कि जो ईएसआर अगर इम्प्रूविंग ट्रेंड की तरफ है तो ट्रीटमेंट बेहतर हो रहा है, विच इज़ रॉन्ग. ईएसआर जो है वो हर किस्म के इन्फेक्शन के अंदर बढ़ सकता है. ईएसआर इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर भी बढ़ सकता है. ईएसआर और जो अब तो हम ईएसआर देखते भी नहीं हैं, हम तो सीआरपी जो है कराते हैं इन्फेक्शंस के अंदर. ईएसआर मल्टीपल माइलोमा के डायग्नोसिस के अंदर जो है यस, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट. ईएसआर जो है वो यूजलेस टेस्ट है फॉर डायग्नोसिस ऑफ या फिर जो है ट्रीटमेंट की सक्सेस को देखने के लिए इन ट्यूबरकुलोसिस. सो classification based on anatomical site of disease may be pulmonary or extrapulmonary, or as it is evident pulmonary means which is in lungs and extrapulmonary means when the focus is outside the lung. लेकिन if this
pulmonary as well as extrapulmonary, that is disseminated, so it will be labeled as pulmonary. पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंदर डिफरेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम एपिडेमियोलॉजिकली देखें तो टीबी जो स्प्रेड होगी वो पल्मोनरी जो स्प्रेड होगी. एक पल्मोनरी टीबी का पेशेंट एज प्रीवियसली बीन टोल्ड एक ईयर के अंदर 10 to 15 लोगों को इन्फेक्ट करता है एंड नंबर कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग. अच्छा जी, so who is a definite case of TB? A patient whom a biological specimen is positive for TB either by microscopy, culture, or WHO approved rapid diagnostic test such as expert MTB-RIF assay is known as a bacteriology confirmed case of tuberculosis and it can be an MCQ. इसके अलावा जो clinically diagnosed in whom bacteriological criteria is not fulfilled by clinician or clinician decide to give ATT based on radiology or suggestive histopathology without laboratory confirmation. Unfortunately, अभी clinically diagnosed cases जो है होते हैं कभी कभार. For example, there is a 5-year-old girl whose her mother is having active tuberculosis और जो है उसके एक्सरे के अंदर एक कैविटी है, उसको फीवर है, everything is consistent with tuberculosis. तो you can clinically diagnose tuberculosis in such a patient जहाँ पे sputum लेना मुश्किल हो. A sputum positive case is a pulmonary case in which one or more initial sputum smear examination is positive for acid-fast bacilli. A patient with Mycobacterium tuberculosis complex identified from a clinical specimen either by culture or a newer method such as molecular line probe assay is also a definite case of TB. All right. A smear negative pulmonary TB case is a patient who has at least 2 sputum specimen negative for AFB and there is no response to antibiotic, and radiologically and clinically the clinician wants to treat him or her as a case of TB. Okay जी, some more definitions. New case as evident कि ऐसा पेशेंट जिसने कभी भी जो है एंटी टीबी ट्रीटमेंट पहले ना ली हो और अगर ली हो तो less than 1 month ली हो. Previously treated, a patient who has received anti-TB treatment for more than 1 month. These previously treated cases may be divided into 3: relapse, treatment failure, or return after default. Relapse is someone who has taken full course of TB, was declared cured, and is now again smear positive. Relapse, दोबारा से डिजीज हो गई, पहले क्योर हो गया था, अब दोबारा डिजीज हो गई. ट्रीटमेंट फेलियर, एक पेशेंट जिसने जो है ट्रीटमेंट लिया और आफ्टर जो है 5th month दोबारा आफ्टर 5th month भी उसका स्मेयर नेगेटिव नहीं हुआ. ट्रीटमेंट फेलियर. या स्मेयर नेगेटिव पेशेंट जिसको क्लिनिकली आपने डायग्नोज किया था, आफ्टर 2 months ऑफ ट्रीटमेंट स्मेयर पॉजिटिव हो गया. इट मीन्स के ATT इज नॉट वर्किंग. ट्रीटमेंट फेलियर. रिटर्न आफ्टर डिफॉल्ट, एक पेशेंट जिसने 1 month ट्रीटमेंट लियो, जब 1 month ट्रीटमेंट ले ली तो न्यू केस नहीं रहा. उसके बाद वो 2 months के लिए उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया. ट्रीटमेंट इंटरप्शन फॉर मोर देन 2 months साथ में हो तो 1 month ट्रीटमेंट और 2 months इंटरप्शन, डिफॉल्ट. डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं. न्यू केस ऐसा पेशेंट जिसने पहले कभी ट्रीटमेंट ना लियो एंड इफ टेकन इट्स लेस देन 1 month. Previously treated, patient who have received 1 month or more of anti-TB treatment और उनमें जो उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है रिलैप्स, ट्रीटमेंट फेलियर, रिटर्न आफ्टर डिफॉल्ट. रिलैप्स जिसको क्योर्ड लेबल किया गया हो और दोबारा से पॉजिटिव हो जाए. ट्रीटमेंट फेलियर, who has taken treatment for 5 months and still positive, or a smear negative case who become positive after 2 months. Return after default, patient who has taken ATT for at least 1 month and has interrupted it for 2 months or more. Definition समझ में आ गई.
आई एज्यूम के समझ आ गई होंगी. एम ऑफ ट्रीटमेंट, of course the aim of treatment is to treat the patient, to cure the patient, to restore quality of life, to prevent death from active TB, to prevent relapse, to reduce transmission to others, to prevent the development and transmission of drug resistance. Treatment regimen जो है, there are 3 standard regimen. One is for new cases, one is for retreatment cases, and one is for drug resistant TB. रीट्रीटमेंट केसेस जो है उसकी जो रेजिमेन है वो अब डिबेटेबल हो गई है, तो वी विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट. न्यू केसेस की जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है वी विल डिस्कस दैट. We give a combination. Is it right to start treatment on clinically diagnosed patient? Yes, it can be done. मतलब ये कि किया जा सकता है, लेकिन जो करना नहीं चाहिए. Sir, please explain again treatment failure and return after default. Treatment failure is someone who has taken treatment for 5 months and still positive. अभी ये बाद में थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा. और the default is a patient who has taken treatment for at least 1 month and there has been an interruption of treatment for more than 2 months. किसी ने जो ट्रीटमेंट ले रहा था, 1 महीने ट्रीटमेंट ले ली, उसके बाद 2 महीने उसने ट्रीटमेंट नहीं ली, इसको हम जो है डिफॉल्ट कहेंगे. और जो है फेलियर, एक आदमी जो है ट्रीटमेंट लिए जा रहा है पेशेंट और एट द एंड ऑफ 5 मंथ वो पॉजिटिव है. सॉरी. ओके जी. सो एक केस ऑफ टीबी जब आता है न्यू केस, तो हम उसका वेट करते हैं, उसका स्मेयर जो है देखते हैं और उसके बाद उसको ड्रग्स देते हैं. ड्रग्स जो है कॉम्बिनेशन में दी जाती है और जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 फेसेस में होता है. एक इनिशियल जो फेज है उसको इंटेंसिव फेज कहते हैं. इंटेंसिव फेज इज फॉर 2 मंथ्स और उसके अंदर जो ड्रग्स दी जाती हैं उनका नाम है रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथेम्ब्यूटॉल एंड पायराजिनामाइड. दे आर गिवन फॉर 2 मंथ्स. और जो कंटिन्यूएशन फेज होता है वो 4 मंथ्स का होता है. उसके अंदर 2 ड्रग्स दी जाती हैं, रिफेम्पिसिन एंड आईएनएच. तो जो टोटल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स का है. डोजेज जो है वो बहुत सिंपल है, 5 का टेबल है. आइसोनियाजिड 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, मैक्सिमम डोज 300 है. रिफेम्पिसिन 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम और मैक्सिमम जो है जो डोज है वो 600 है. पायराजिनामाइड 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम, एथेम्ब्यूटॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम. फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के अंदर जो है फिक्स डोजेज होती हैं और उससे जो है कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई है. इफ द पेशेंट फॉल्स बिटवीन द वेट of 30 to 39 kg, 2 tablets are given. 40 to 54, 3 tablets. 55 and above, 4 tablets. हर दफ़ा जब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका वेट हमें करना चाहिए और उसके हिसाब से जो डोज है उसको एडजस्ट करना चाहिए. फॉलोअप ऑफ स्प्यूटम का जो एग्जामिनेशन होता है वो 2nd मंथ के ऊपर होता है. मतलब स्प्यूटम स्मेयर के ऊपर हमने डायग्नोज किया, ट्रीटमेंट दी, इंटेंसिव फेज, 4 ड्रग्स दी, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, एथेम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, वेट किया. पेशेंट हमारे पास मंथली आ रहा है. जब वो 2nd मंथ के ऊपर आएगा हमने दोबारा उसके सिम्टम्स देखे, उसका वेट किया कि कितना वेट गेन हुआ है. यूजुअली 3 kg का 3 kg जो वेट गेन होता है इन सक्सेसफुल ट्रीटमेंट. और स्मेयर किया. स्मेयर हम जो रिपीट करते हैं 2nd मंथ के ऊपर, 5th मंथ के ऊपर और एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट. अगर 2nd मंथ के ऊपर जो पेशेंट का स्मेयर नेगेटिव हो गया तो वी विल स्विच द पेशेंट टू कंटिन्यूएशन फेज विच इज कंपोज ऑफ 2 ड्रग्स, आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन. 5th मंथ के ऊपर हम दोबारा से जो है स्मेयर करेंगे. अगर 5th मंथ पे स्मेयर पॉजिटिव किसी का है तो दैट विल बी ट्रीटमेंट फेलियर.
और फिर एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट 6 मंथ्स हम दोबारा स्मेयर करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? Can TB be passed genetically and from mother to newborn? Background noise, yes, there's some background noise. जी, अच्छा जी, at birth, if a pregnant woman is having tuberculosis, so there have been less than I think 100 cases in literature जिसके अंदर ये TB जो genetically pass हुई हो। ये जो बैकग्राउंड नॉइस को जो कम किया जा सकता है IT। If at the end of 2 months smear is positive, will we continue initial phase? No. If at 5 months smear is positive, then what would be the therapy given ahead? If treatment failure, will we switch to INH and rifampicin? अच्छा जी, इन सवालों के अगर मैं जवाब दूंगा, can we switch off the mics of all the other participants other than me? बहुत सारी बैकग्राउंड के अंदर नॉइस आ रही है। IT है यहाँ पे? जी सर। यार ये बैकग्राउंड के अंदर इतनी नॉइस आ रही है। सर वॉइस ओके है, वॉइस क्वालिटी ओके है, और नहीं जब वो तो ओके है, लेकिन और आवाजें भी आ रही हैं साथ में। और आवाज सर मैं चेक कर लेता हूँ, प्लीज प्लीज, थैंक यू। अच्छा जी, अगर मैं इन क्वेश्चंस के जवाब दूंगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन फिर भी अब पूछा है तो if at the end of 2 months smear is positive, will we continue initial phase? No. We will do gene expert. We will see if rifampicin is sensitive or resistant. Then there are some other tests which are rapid and they tell us about, मतलब होता क्या है? होता यह है कि कभी किसी ने जो फ्लैजिल खाई है for 7 days, किसी का जो किसी को जो डायरिया हो या एंटीबायोटिक्स जो लोग जो इतना अच्छा कंप्लाइंस नहीं होता है, जैसे ही जो तबीयत बेहतर होती है लोग ट्रीटमेंट जो छोड़ देते हैं ड्यू टू साइड इफेक्ट्स या फिर ड्यू टू सुस्ती। ठीक है, तो पहली चीज जो है ये हमें देखनी होती है कंप्लाइंस कैसा है अगर पेशेंट पॉजिटिव है। दूसरी चीज हमें ये देखनी होती है कि जो हम ड्रग्स दे रहे हैं उसके अगेन रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस है तो हम जो MDR ट्रीटमेंट TB की जो रेजिमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो यही जो जवाब है कि if at 5th month smear is positive then what would be the therapy given? सेकंड लाइन ड्रग्स होती हैं। हाँ, अब जो बैकग्राउंड नॉइज है खत्म हो गई है। थैंक यू IT। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट जो है हमें जो पेशेंट को लेबल करना होता है। क्वेश्चन देखने क्या है। हर साल पाकिस्तान के अंदर 500,000 जो है न्यू केसेस आते हैं। हाउ कैन वी आइसोलेट ऑल ऑफ देम? फिर उसके बाद जो है TB जो है बहुत मुश्किल चीज़ है टू डायग्नोस, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इन्फेक्टेड है। वाई आर TB पेशेंट आइसोलेट? अच्छा, क्योर का मतलब ये है पेशेंट whose sputum smear or culture was positive at the beginning of treatment, but at the end of treatment his smear is negative। मतलब हमने 2nd month, 5th month और 6th month के ऊपर हमने स्मेयर किया, 0 month के ऊपर पेशेंट पॉजिटिव था, एट द एंड यानी एट द एंड ऑफ 6th month पेशेंट इज नेगेटिव, उसके सिम्टम्स सारे बेहतर हो गए, वेट गेन हो गया, और साथ में जो 2nd या 5th month का स्मेयर है वो भी नेगेटिव है। तो वी विल लेबल देम एज क्योर। ऐसा पेशेंट जो शुरू में पॉजिटिव हो, एंड में नेगेटिव हो, और बीच में जो हमने स्मेयर 2 किए थे उनमें से जो है कोई एक हमारे पास मौजूद हो कि वो नेगेटिव है, ट्रीटमेंट कंप्लीटेड, ये भी ट्रीटमेंट सक्सेस है। अ पेशेंट हु हैज कंप्लीटेड ट्रीटमेंट
लेकिन जो एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट वाला जो स्मेयर है वो पेशेंट को स्प्यूटम नहीं आया और सारी चीज़ें बेहतर हो गई तो कराने की ज़रूरत नहीं हुई, तो वो भी जो है वो ट्रीटमेंट कंप्लीटेड है। उसको हम क्योर नहीं कहेंगे, ट्रीटमेंट कंप्लीटेड कहेंगे, लेकिन ये भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। या फिर एट द एंड वाला जो है वो नेगेटिव है और बीच के जो दो हैं वो मिसिंग है, तो ये भी जो है ट्रीटमेंट जो है कंप्लीटेड है। तो क्योर और ट्रीटमेंट कंप्लीटेड तकरीबन एक ही चीज़ है। ट्रीटमेंट फेलियर ये हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है। एट द एंड ऑफ 5th मंथ जो पॉजिटिव है वो ट्रीटमेंट फेलियर है। डिफॉल्ट ये भी हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि 1 मंथ ट्रीटमेंट लियो और 2 मंथ्स उसने जो है दवाई ना लियो। और जो है एक और जो डेफिनेशन है वो है डेथ, जो कि जो है किसी भी वजह से अगर पेशेंट जो है डाई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विल बी लेबल्ड एज डेथ ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था, if patient is gaining weight, will there be any modification? Yes, we will change the dose अगर वो दूसरी कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि इंटेंसिव फेज के अंदर 4 ड्रग्स और कंटिन्यूएशन फेज के अंदर 6 ड्रग्स। अच्छा, डॉट्स इज अ सिस्टमिक स्ट्रेटेजी विच हैज 5 कंपोनेंट्स, और ये एमसीक्यू जरूर आएगा। उसके जो 5 कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स टू कंट्रोल टीबी, गुड क्वालिटी डायग्नोसिस, मतलब क्लिनिकली डायग्नोस केसेस ना हो, स्मेयर के ऊपर या माइक्रोस्कोपी या जीन एक्सपर्ट या कल्चर के ऊपर डायग्नोसिस हो, गुड क्वालिटी ड्रग्स एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग मेडिकेशन, मॉनिटरिंग हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और इसके अलावा जो DOT होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, उसके अंदर क्या किया जाता है कि एक ट्रीटमेंट फैसिलिटेटर जो चूज किया जाता है जो अपने सामने पेशेंट को दवाई खिलाता है। इट कैन बी a healthcare worker, it can be patient's own household member। ठीक है, तो 5 components हैं: political and administrative commitment, good quality diagnosis, uninterrupted supply of drugs, monitoring, record keeping, and directly observed treatment। DOT has proven to prevent the emergence of MDR TB and also reverse the incidence of MDR where it has emerged. MDR TB is a tragedy for individual patient and a symptom of poor TB management. The best way to confront this challenge is to improve TB treatment and implementation of DOT। फिर आ जाते हैं कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग। एनी कॉन्टैक्ट हु बिकम्स अ प्रिजम्पटिव केस ऑफ टीबी, मतलब उसको कॉफ, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स या हेमोप्टाइसिस, चेस्ट पेन या फटीग हो तो हम उसका स्मेयर करवाएंगे। So the points to remember is that do sputum smear for AFB in all suspected pulmonary TB patients. Try all efforts to get histological proof for extra pulmonary TB. Always calculate the dose according to patient's body weight. Patient education regarding correct dosage, regular treatment, and possible side effects should be told to the patient. Treatment should be directly observed. Regular follow-up of patient should be done। और ऐसे पेशेंट्स जिनको अंदर जो है आप ड्रग रेजिस्टेंट सस्पेक्ट करो उनको स्पेशलिस्ट के पास रेफर करना है। क्वेश्चंस? Is spinal tuberculosis will be the treatment? Is spinal tuberculosis and Pott's disease the same thing? Yes, almost same thing. I have heard about removal of tuberculosis and lumbar vertebra removal or diagnosis। Which book should we refer? मेडिसिन की आप लोग कौन सी अच्छी बुक पढ़ते हो? परवीन कुमार पढ़ते हो, डेविडसन पढ़ते हो? There was one patient diagnosed with TB of cervical region and surgery was done। Yes, it can be done। इरफान मसूद, ये क्या है? ये बुक का नाम है? अच्छी बुक पढ़े, मैंने नाम भी नहीं सुना है। कैन यू एक्सप्लेन दिस? क्या
एक सेकेंड। अच्छा, वो जो सवाल था कि उसको एक्सप्लेन करना है कि सर्वाइकल स्पाइन क्यों निकाली। इट वॉज फॉर डायग्नोसिस, हिस्टोपैथोलॉजी। शुड वी लर्न डोजेज? यस, एंड इट्स वेरी सिंपल। 5 का टेबल है। इरफान मसूद, इट्स अ रिव्यू बुक। रिव्यू बुक भी आप अच्छी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी अच्छी रिव्यू बुक्स हैं। Is extrapulmonary TB always secondarily disseminated or there can be a direct infection to other places? डायरेक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो स्किन का होता है, लंग्स का होता है, और इसके अलावा जो है यूरिनरी ट्रैक हो सकता है, लेकिन लंग के अंदर आता है और वहाँ से ही जो है बॉडी के अंदर, और जो सॉरी एक जो है जीआई की जो टीबी होती है, लेकिन जब से जो हमारे पास पेस्चराइज मिल्क आया है तो वो बहुत कम हो गई है। लेकिन मोर और लेस जब भी होती है तो वो लंग के थ्रू ही जाती है, लेकिन लंग के अंदर जो है होना जरूरी नहीं है। We won't label a person who is cured, a person cured if he is। एक सेकंड, बहुत सारे सवाल आ गए हैं, सॉरी। Can latent TB be reactivated in an immunocompetent patient? कहा जाता है कि जब पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है तब लेटेंट टीबी जो है एक्टिवेट होती है। Dosage slide again. Okay, I will. How can we label a person pure if he has positive? तो उसको प्योर हम नहीं कहेंगे। ऑफ कोर्स डेविडसन में लॉन्ग है तो भी आपको जो है पढ़ने हैं, टीबी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज मिली ट्यूबरक्लोसिस क्योरेबल? यस। इज स्ट्रेप्टोमाइसिन इंक्लूडेड इन फर्स्ट लाइन ड्रग्स? नो मोर। अब जो इंजेक्टेबल ड्रग्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। व्हाट इज एटिपिकल टीबी? ये मुझे नहीं पता एटिपिकल टीबी क्या होती है। डोजेज की स्लाइड दिखा दूं? जो डोजेज हैं, आइसोनियाजिड की जो डोज होती है 5 to 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम जो है बॉडी वेट होती है यूजुअली, लेकिन जो वो है 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम जो दी जाती है। रिफेम्पिसिन 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम, इथेम्ब्यूटॉल 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम, और पायरिजिनामाइड 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम। तो ये 5 का टेबल है, 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम कोई नहीं है। Is there any difference between symptoms of primary and reactivation TB? No. In wards, we are often exposed to TB patient. So what precautions should we observe? हम जब भी वार्ड में जाएं तो हमें जो है सुबह अच्छा नाश्ता करके जाना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी ताकि हम बिल्डअप रखें, और अगर हम टीबी वार्ड में जा रहे हैं तो हमें प्रोटेक्टिव जो है डिवाइस पहन के जाना चाहिए। आई थिंक आपने देख लिया होगी डोजेस, और ये फिक्स डोज रेजिमेन है। मोस्ट कॉमनली जो टीबी जो है होती है वो यंग एज ग्रुप के अंदर होती है, लेकिन किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो सकती है। जो पीक जो हमने जो है अपनी लोकल स्टडीज के अंदर देखा है वो 20 से लेकर 50 ईयर्स के अंदर जो देखा है, लेकिन किसी भी एज के अंदर हो सकती है। न्यूनेट्स के अंदर भी होती है और बहुत ज़्यादा ओल्ड पेश पीपल के अंदर भी होती है। और कोई क्वेश्चन?
नहीं, टीबी का जो sir, will we change dose to treat primary, secondary or latent TB? We only treat TB disease, not latent TB. Sir, what is the difference between treatment completed and treatment failure? Oh, ये तो बहुत ज़्यादा difference है. Treatment completed मतलब ये है कि patient is cured, और treatment failure is patient is positive at the end of treatment, at the end of 5th month. What is meant of histopathological proof of extrapulmonary TB? किसी को एक lymphadenopathy हो गई, आपने उसके जो फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी की, या आपने उसको रिमूव करके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्रॉनिक ग्रेन्युलेटस इन्फ्लेमेशन विद केसिएशन आई, तो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रूफ है. और अगर हमने यही जो है जो मटेरियल है उसको हमने टिश्यू कल्चर के लिए भेज दिया, तो ये जो है बैक्टीरियोलॉजिकल प्रूफ हो जाएगा. और कोई क्वेश्चन? चलें जी, I thank you all for joining this session, and I also thank the IT people for their support. We will meet next week with some other topic. Thank you. IT? Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.